Good morning, children. I have completed syllabus of first term in science for class 5. Today, I am going to explain chapter 1, some key topics as revision. आज हम चैप्टर 1 का कुछ ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जो आप लोग को चैप्टर को याद करने में जिससे हेल्प मिलेगा. Some key topics of chapter 1: human body, the circulatory system. First topic is the circulatory system. Circulatory system is a organ system that helps in transporting different substances, that is oxygen, nutrients, water inside our body, and removes waste gases from our body through the blood. Circulatory system consists 3 parts. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 पार्ट आता है: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. नाउ I discuss about heart. I will discuss about heart. हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे, फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर से हम लोग डिस्कशन करते हैं. हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स and protected by rib cage. Its size is according to size of our fist. हमारे फिस्ट के साइज के अनुसार हार्ट का साइज होता है. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर. 2 upper chamber is called auricles and 2 lower chamber is called ventricles. Upper chamber is smaller than lower chamber, it means ventricle. Auricle जो है वो ventricle से छोटा होता है. Auricle and ventricle is separated by a muscular wall that is called septum. And auricle and ventricle, between auricle and ventricle consist a peculiar type of structure that is called valves that allow flow of blood, और बैकवर्ड फ्लो को भी वो रोकता है, valves. नाउ फंक्शंस ऑफ द हार्ट. अब हमको जानना है हार्ट का फंक्शन क्या है. मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड. इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शंस. दूसरा भी फंक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है इट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड. ये इम्प्योर ब्लड का रिसीव करता है. Now, second, blood and their different types of cells. Blood and their different types of cells. Blood is a fluid that flow in blood vessels, and there are 3 types of cells in blood. That is, first, red blood cells, second, white blood cells, and third, platelets. Red blood cells is red colored due to a red pigment called hemoglobin. It is also oxygen carrier. And next, white blood cells, it protects our body from any harmful diseases. It fight against harmful germs that causes harmful diseases and any type of infections. And third cells is platelets. They help in blood clotting when we are injured. जब हमको किसी भी तरह का चोट होता है या कोई भी तरह का ब्लड आने लगता है तो उस समय ब्लड क्लॉटिंग में मदद करने वाला जो है ये सेल प्लेटलेट होता है. फंक्शंस ऑफ ब्लड. अब हमको जानना है ब्लड का फंक्शंस क्या है. इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. नेक्स्ट, इट कैरी अवे वेस्टेज from our body through excretory system. And third, it maintain the temperature. And now, blood vessels. Blood vessels is a third part of the
organ of the circulatory system. Blood vessel is a thin muscular tube-like structure. It has three types: arteries, veins and capillaries. Arteries mostly located deep in body, away from skin, and carry blood away from the heart. ये हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर में ले जाता है. एंड थर्ड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड. आर्टरी carry oxygenated blood, and walls of artery are thick, strong and elastic. Now vein, mostly veins located close to skin. ये skin से नजदीक होता है. इसका काम है bring blood into the heart. हार्ट में ब्लड को लाना. थर्ड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, वेन कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ये कैरी करता है इम्प्योर ब्लड को, इट मीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को. नाउ वाल्स, वॉल्स ऑफ वेन्स आर थीन एंड वीक. इसका वाल जो होता है वो थीन होता है और वीक होता है. एंड आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज ऑल्सो फॉर्म इन आवर बॉडी एज नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर. ये नेटवर्क की तरह का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी में होता है. Also, capillary is also network type structure in our body, and wall of capillaries is also thin and weak, and it connect arteries and veins. Capillaries walls are thin, और ये इसका मेन काम है आर्टरी और वेन को अटैच करना, कनेक्ट करना हमारे पूरे बॉडी में. नाउ प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. अब हमको जानना है, इस चैप्टर में हम पढ़े हैं कि सर्कुलेशन का क्या प्रोसेस है. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है इसमें हम जानते हैं, देखते हैं कि ब्लड का जो सप्लाई है, कंटिन्यूसली ब्लड का सप्लाई हमारे पूरे बॉडी में होते रहता है. इन दिस प्रोसेस एट फर्स्ट deoxygenated blood, it means impure blood, carry from upper part of body and lower part of body through superior vena cava and inferior vena cava into the heart. Here heart pumps blood through pulmonary artery into the लंग्स. पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो हार्ट में आया है सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद के द्वारा, उसको हार्ट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पंप करके यहाँ लंग्स में भेजता है. इन लंग्स ऑक्सीजन रिलीज्ड, इन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन लंग्स, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड. And after oxygenated blood through pulmonary vein return to the heart. In heart, aorta carries oxygenated blood and transport all parts of our body. In this way, continuous supply of oxygenated and deoxygenated blood takes place in our body. That is the process of circulation of blood. Now, key topic is ways to keep heart healthy. हम लोग किस तरह से अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं. फर्स्ट, वी शुड डू एक्टिविटीज लाइक योगा, साइकिलिंग एक्सेट्रा. हम लोग को कुछ ऐसा एक्टिविटी करना चाहिए जैसे योगा होगा, रेगुलर एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है. इससे हमारा बॉडी जो है वो सही रहेगा और हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा. नेक्स्ट, वी शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक. हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए. थर्ड, वी शुड अवॉइड जंक फूड. जितना जंक फूड है, जो पैकेट वाला फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट और शुगर होता है, जो खाने से हम लोग ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, इस तरह के खाना को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका खाना जो है, इस तरह का जो खाना है वो हमारे हार्ट को हेल्दी नहीं रहने देता है. फोर्थ, वी शुड ईट बैलेंस डाइट. हम लोग को बैलेंस डाइट खाना चाहिए.
ऐसा डाइट जिसमें हम लोग का ऑल न्यूट्रिएंट जो है वो सही मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाए। फिफ्थ, वी शुड स्टे हैप्पी एंड अवॉइड एनी टाइप ऑफ टेंशन। हम लोग को हमेशा खुश रहना चाहिए और किसी भी तरह के टेंशन को अवॉइड करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए। नाउ इस तरह से हम देख रहे हैं कि वी हैव लर्न अबाउट वाइटल ऑर्गन सिस्टम। हम लोग यहाँ सीखे वाइटल ऑर्गन सिस्टम, जो हमारे लिए की ऑर्गन है, जो की ऑर्गन है, जो बहुत मेन ऑर्गन है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है वो की ऑर्गन का फंक्शन कर रहा है।